साउथ के जानिब से एक स्ट्राइक प्रोटेस्ट रखा गया था। अल्लम प्रभु साहब और मुलगे साहब, वंटी साहब और हमारे ZP मेंबर संतोष डन्नूर साहब की जानिब से एक स्ट्राइक रखा गया था। ये 3 काले कानून जो मोदी सरकार ने पास किया है उसके विरोध में। और सबसे बड़ी बात, ये जो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो पॉलिसी लाए थे, जो इम्प्लीमेंट किए थे, एम्स का प्रपोजल दिए थे वो कैंसिल कर हुबली को चले गया है। किम्स का प्रपोजल दिए थे वो कैंसिल हुआ है। गुलबर्गा डिवीज़न, रेलवे डिवीज़न का जो ऑलमोस्ट सब काम हो गया था उसको सिर्फ खड़गे साहब किए हैं बोलकर उसको रोका गया है। अब तक काम नहीं कर रहे हैं। और आर्टिकल 371J के लिए यहाँ एक हेड ऑफिस होना था, यहाँ पर एक पूरा एक सिस्टम होना था। वो प्रपोजल सिद्धरामैया के गवर्नमेंट में हो चुका था, मगर उसको मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने प्रपोजल दिया बोलकर वो भी कैंसिल करे। ये सरकार सिर्फ अमीर को और अमीर और गरीब को गरीब करने की कोशिश कर रही है। जितने हमारे राहुल जी जो पार्लियामेंट में कहे हम दो और हमारे दो, अमित शाह, मोदी और वो 2 अडानी और अंबानी का सिर्फ राज चल रहा है हिंदुस्तान में। ये हिंदुस्तान कृषि प्रदेश है। कृषि सबसे ज्यादा यहाँ पर ये होती है। किसानों को मारने का काम कर रहे हैं ये लोग अब ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाले हैं। अब हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर असेंबली में ऐसा प्रोटेस्ट होगा और हो रहा है। अगर जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेंगे, देख सकते हैं हम 3 महीने से हमारे किसान भाई वहाँ पर बैठे हैं, जिसमें 100 किसान मर चुके हैं, मगर ये सरकार कोई ये नहीं देख रही है और किसानों की तरफ देख नहीं रही है और उनको बोल रहे हैं ये आतंकवादी हैं, ये कम्युनिस्ट हैं, ये खालिस्तानी है, ये बोलकर उनको
दूर करने की कोशिश करिए। एक सरकार को चुनकर इसलिए लाते हैं गरीबों का काम करने के लिए और गरीबों को भूख प्यास उनको दूर करने के लिए लाते हैं, मगर ये सरकार सिर्फ अमीरों का पेट भरने की कोशिश कर रही है और अमीरों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में अगर ये सरकार नहीं सुनेगी, गली से लेकर दिल्ली तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಏನು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಜನ ವಿರೋಧಿ ಮಸೂದೆಗಳು, ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಮಸೂದೆಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ಮಸೂದೆಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತಿಹಾಸದ ದಾಖಲಿದೆ. 70 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಇವರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು 3 ಕರಾಳ ಮಸೂದೆಗಳು ಏನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. APMC ಕಾಯ್ದೆ, ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ 3 ಮರಣ ಶಾಸನಗಳು ಈ BJP ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಇಡೀ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಪತ್ರಿಕೆಲ್ಲ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ತಜ್ಞರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಯಮಾಡಿ ಮೋದಿಯವರೇ ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ರೈತರ ವಿರೋಧಿ ಮಸೂದೆ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದು ಹೊಕ್ಕು ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದ್ರು, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಮಂತರ ಕೈವಶವಾಗಲಿದೆ. ಬಡವರು ಅವ್ರ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಇವರು ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮಂತರ ಕೆಳಗೆ ಇವು ಕೈವಡ್ಡಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ದುಡಿತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಹೊಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮಾರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಿಲ್ಲ ಹೊಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ಹೊರದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ಆ ಹೊಲವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮತ್ತೆ ವಿದೇಶಿಯರ ಪಾಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಚು ಇದಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಹರಿಯಾಣದ ಹತ್ತಿರ 1,000 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗೋಡೌನ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ 4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ಈ ಹಿಂದೆನೇ ಸಂಚು ಇವತ್ತು ಮೋದಿಯವರು ಮತ್ತು ಏನು ಅನಿಲ್ ಅದಾನಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು ಈ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಸ್ಕೊಂಡು ಇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಹಿಟ್ಲರ್ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ 170-200 ಜನ ರೈತರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಮೋದಿಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇವತ್ತು ಉಸಿರು ಮುಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಆ ರೈತರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ KPC ಆದೇಶ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಲ್ಲ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ರೈತರು, ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ರೈತರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. अस्सलाम वालेकुम। आज जो गुलबर्गा साउथ से जनाब अल्लम प्रभु पाटिल साहब XMLC इनके सदारत में यहाँ पर जो किसान के जो 3 एक्ट बनाए हुए हैं उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर रैली निकाली गई है। और हमारे जो ब्लॉक सदर हैं नीलकंठ मुलगे साहब और बाबू वंटी साहब, जो झड़पी मेंबर संतोष दन्नूर साहब के जो इन सब के सदारत में जो आज प्रोग्राम हुआ है, जो किसान रैली तिम्मापुरी सर्कल से लेकर यहाँ पर जो तहसील ऑफिस तक जो रैली आई हुई है, ये रैली आने का मकसद यह है कि किसान जो के ख़िलाफ़ जो 3 एक्ट निकाले हुए हैं, जो परेशानी करने वाले, किसानों को तबाह करने वाले, वो 3 एक्ट के ख़िलाफ़ है। और जो गुलबर्गा को एम्स जो आया था उसको हुबली और धारवाड़ को जो ट्रांसफ़र किया, COE जो एक्सलेशन है जो यूनिवर्सिटी का वो भी ट्रांसफ़र किया। और यहाँ पर जो निम्स है वो भी आज बहुत 3-4 सालों से उतना ही पड़ा है। तो HKRDB का जो 1100 करोड़ जो बजट आने वाला था, अभी तक 500 करोड़ बजट आया है। इस तमाम के ख़िलाफ़ क्या है मालूम, आज जो साउथ में जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से रैली निकली हुई है जनाब अल्लम प्रभु पाटिल साहब की सदारत में, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ये करना चाहता हूँ, जो कल्याण कर्नाटक जो बनाए हुए हैं, यहाँ पर जो कल्याण कर्नाटक में जो भी चीज़ है यहाँ पर हर चीज़ हटा रहे हैं।
जो यूनिवर्सिटी जो रेलवे डिवीज़न था कल्याण कर्नाटक, यहाँ पर रेलवे डिवीज़न भी हटा दिए, COE भी हटा दिए, निम्स भी हटा दिए, एम्स भी हटा दिए, और जो बीच में फूड जो यहाँ पर ये होता था फूड का भी हटा दिए थे, फिर वापस ला लिए फूड प्रोटेस्ट करने के बाद। तो हर जो कल्याण कर्नाटक बनाने के बाद उल्टा यहाँ पर जितने भी चीज़ें हटा रहे हैं, जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो अपने इस पे लाए थे वो चीज़ें जब हटा रहे हैं, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो चीज़ें सब यहाँ पर ही रखिए, और जो कानून जो कृषि जो काला कानून है वो उसको वापस ले। मोदी पटेल अनपढ़। आज गुलबर्गा में एक अजीम और शान आंदोलन निकला है। यह आंदोलन का मतलब ये है कि पूरी 130 करोड़ की आवाम आज ये महसूस कर रही है कि महंगाई आने वाले दिनों में आसमान चढ़ के बोलेगी। ये एहसास आज गुलबर्गा से पूरी दुनिया को ये मालूम हो गया, और भारत के 130 करोड़ आवाम को भी ये मालूम हो रहा है। हमारे किसान जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, 2 महीने से ज़्यादा से दिन हो गए और 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। बीजेपी गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स के ऊपर एक जू नहीं चल रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि मोदी गवर्नमेंट जो बिल लाएगी वो समझ रहे हैं कि हमारा बिल एक अच्छा सा बिल है, मगर इस बिल के अंदर इतनी खामियां हैं कि आने वाले दिनों में आवाम परेशान होगी। मोदी गवर्नमेंट का एक ही लक्ष्य है कि जो भी बिल ये पार्लियामेंट में पास करेंगे सिर्फ उसको आवाम मानना पड़ेगा। आज की आवाम ये बात नहीं मानेगी, क्योंकि जो जन विरोधी बिल है उसको पब्लिक रिजेक्ट करते जाएगी। ये बताइए कि बीजेपी गवर्नमेंट में BSNL हाथ से चला गया, 2 करोड़ नौकरियां आज मिल नहीं रहे लोगों को। ये बताइए एयरपोर्ट चला गया, हर चीज़ प्राइवेटाइज हो रहा है। आने वाले दिनों में कभी ये बिल पूरी तरीके से लागू होगा तो पब्लिक परेशान होगी। तो इसीलिए हम लोग गुलबर्गा से हमारे जो दोस्त अहबाब यहाँ पर हमारे साथ आए हैं, इनका बोलने का मकसद एक ही है कि ये बिल को बीजेपी गवर्नमेंट सीरियस ले और ये बिल को रिजेक्ट करे, वरना आने वाले दिनों में इससे बड़े बड़े आंदोलन होते रहेंगे और बीजेपी गवर्नमेंट को हम चैन से सोने नहीं देंगे। रही बात फार्मर्स के ऊपर, जो दिल्ली में इतना अत्याचार हो रहा है, उनके लिए कीले बिछाए गए हैं, उनके लिए पानी बरसाया गया है, उनके लिए अनब शनब बातें यूज़ की गई है। बताइए कि ये किसानों के फेवर में ऐसे हरकतें करते हैं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और बीजेपी गवर्नमेंट के कोई मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर ये मानने के लिए रेडी नहीं है। हम गुलबर्गा की सरजमीन से अपील करते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट ये बिल को जल्द से जल्द विड्रॉ करे और आवाम को जितनी महंगाई हुई है, यहाँ पर जो महंगाई बढ़ रही है, दाल का रेट ले लीजिए, आप पेट्रोल का रेट लीजिए, डीजल का रेट लीजिए, ये गैस का रेट लीजिए, ये आसमान पे चढ़ रहा है और गरीब परेशान हो रहा है। अभी गुलबर्गा में कोई भी ये नहीं होगा कि बात दबा दबा के की जाएगी, बात खुल के की जाएगी और बीजेपी गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को, मोदी गवर्नमेंट को सवाल पूछे जाएंगे और उनको जवाब देना पड़ेगा, वरना आने वाले दिनों में ये बीजेपी के जो 1982 में जो मिनिस्टर से 2 मिनिस्टर वही हालत होते रहेंगी। शुक्रिया।